Hello all my dear students, a hilarious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, in front of you with a new topic, that is method of contraception part number 2. Up till now in chapter number 1 we have discussed about method of contraception part number 1 in the previous video. So I am ready with your new video, that is method of contraception part number 2. And up till now in previous video we have discussed about method of contraception natural method. In natural method we have discussed about rhythm or calendar method. We have also discussed about coitus interruptus, as well as we have also discussed about lactational amenorrhea, and all these methods are discussed earlier, as well as we have also discussed spermicidal jellies. And in barrier methods we have discussed about certain kind of physical and chemical or mechanical barrier, those just preventing the entry of sperm into the female reproductive tract, or we can say that into the fallopian tube or to the site of fertilization. So today we will start with method of contraception part number 2, and I am starting with IUDs, that is what, intrauterine devices. And actually these devices are also used or fitted in the female's reproductive tract to prevent the entry of the sperm. तो होता क्या है बेटा, first of all this is only for female. It means that intrauterine devices are the devices or method of contraception that is used in the case of females only. Is small T-shaped plastic device, small T-shaped plastic device wrapped in copper or hormone is inserted into the female's body by doctor और नर्स. यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली स्मॉल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टी शेप प्लास्टिक डिवाइस रैप्ड, इसको हम रैप करते हैं किसमें, कॉपर में. कॉपर आपको पता ही एक मेटल होता है, एंड दिस इज टॉक्सिक टू स्पर्म, और अ सर्टेन काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, दोज आर प्रोजेस्टेरॉन, एंड inserted into the female's body. Okay, and as you know that I have mentioned this technique is only for females, and there are 3 kind of IUDs are available now in the market. तो वो कौन कौन सी IUDs हैं जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं. सो फर्स्ट वन इज हियर नॉन medicated IUDs. Second one is copper releasing IUDs. And the third and last we will discuss about here hormone releasing IUDs. So in the market at present there are non-medicated IUDs, copper releasing IUDs, as well as hormone releasing IUDs. 3 kind of IUDs or intrauterine devices are available. So in the case of non-medicated IUDs we take example of Lippers loop. Okay, so Lippers loop, this is what non-medicated IUDs, and this was used earlier, or in the beginning we was using non-medicated IUDs. What is copper releasing IUDs? Example of copper releasing IUDs or intrauterine devices are, here we will take the example of copper T, copper 7, as well as multi-load 375. So all these are the copper releasing IUDs. It means that it is suggested by the name here, copper is released. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा,
copper is released which is toxic for sperms. यानी यहाँ पे क्या रिलीज होता है बेटा, कॉपर रिलीज होता है विच इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर द स्पर्म्स एंड also promote the release of fluid from fallopian tube and यूटेरस. ये कॉपर क्या करता है बेटा, पहले तो खुद को स्पर्म को मारने का प्रयास करता है, अगर असफल हो जाता है देन इट ऑल्सो प्रमोट or this is also excite the fallopian tube or uterus to release certain kind of fluids. And question now comes in your competitive examination कि बेटा जो fluid होता है उसमें एक्चुअल में होता क्या है. तो यहाँ से आप लिखेंगे दिस इज ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, इट मीन्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो फ्लूइड कंटेन्स उस फ्लूइड के पास क्या क्या होता है, पहला कॉपर आयन यानी कॉपर आयंस होते हैं, या हम लिख सकते हैं Cu+. Next certain kind of enzymes are also there, prostaglandins as well as WBCs, we will write here white blood cells, and these white blood cells help in the phagocytosis. जो स्पर्म की डेथ होती है उसको खा जाती हैं कौन, WBCs. So this fluid contains what, copper, enzymes, prostaglandins and WBC, and all these fluids एक साथ क्या करते हैं, किल द स्पर्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंड लास्ट, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, इनके एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट LNG20 एंड सेकेंड प्रोजेस्टेरोन. यानी दो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज LNG20. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि LNG का फुल फॉर्म होता क्या है. तो फुल फॉर्म ऑफ LNG इज लीवोनॉर्जेस्टेरल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, सॉरी, लीवोनॉर्जेस्टेरल. So full form of LNG is here levonorgestrel. So hormone releasing iodines, example of that is LNG20 or levonorgestrel as well as progesterone. All these करते क्या है, release hormone progesterone which inhibit ovulation. यानी यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जितने भी आयोडीज हैं इनका काम क्या है, ओवुलेशन को रोकना. तो यहाँ पे अभी तक हमने देख लिया नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, लिपर्स लूप जो कि बहुत पहले यूज़ किया जाता है, आज वो आउटडेटेड हो चुका है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी में दो हैं, ये आपके कॉपर रिलीजिंग आयोडीज और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. इन दोनों को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न. ये क्या है, मॉडर्न आयोडीज हैं बेटा, मॉडर्न आयोडीज. सो मॉडर्न आयोडीज में दो हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जहाँ पे आपने देखा कॉपर T है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, एक्चुअली कॉन्सेप्ट इज हियर कॉपर इज वेरी टॉक्सिक फॉर द स्पर्म, इट किल्स इटसेल्फ द स्पर्म and also promote the fallopian tube and uterus to release a fluid, and that fluid contains copper ion as well as prostaglandins as well as some cells that is WBC, those help in phagocytosis of the sperm. तो ये नॉर्मल सी बात है. अब यहाँ से देखेंगे हम हार्मोन रिलीजिंग में बेटा, तो हार्मोन रिलीजिंग में LNG20 यानी लीवोनॉर्जेस्टेरल है आपका, along with this there is progesterone, and all these have just releasing property of progesterone, and that just help to stop the process of or help to prohibit the process of ovulation. So this was all about the first IUDs. Advantages of IUDs, यानी IUDs के क्या क्या एडवांटेज हैं. तो फर्स्ट से पहले क्या है, दिस इज़ वेरी चीप एंड इफेक्टिव. ये बहुत ही सस्ता और इफेक्टिव कंट्रासेप्शन है. दूसरा
इट इज़ व्हाट रिवर्सिबल। क्या है बेटा, ये रिवर्सिबल है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अप टू 5 to 10 years, यानी ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आयोडीज। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? नो प्रोटेक्शन फ्रॉम sexually transmitted diseases. Second, may be painful, ये क्या हो सकता है बेटा, पेनफुल हो सकता है। इट मीन्स दैट पेन इन एब्डोमेन पेन हो सकता है, एब्डोमेन पेन। एंड व्हाट इज द लास्ट, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी वजह से जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इर्रेगुलर होती है, किसकी वजह से, हार्मोनल आयोडीज की वजह से। कौन, हार्मोनल आईयूडीज, हार्मोनल आयोडीज की वजह से बेटा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, दैट इज ओरल contraception. And in oral contraception we will discuss about that. Here oral pills are given to females. Oral pills are given to females that contains the combination that contains the or that having the combination of progesterone plus progesterone or estrogen plus progesterone हार्मोन। यानी बेटा जो भी ओरल पिल्स होती हैं, इन ओरल कंट्रासेप्शन जस्ट ओरल पिल्स आर गिवन टू फीमेल्स, इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो जस्ट फॉर फीमेल, दैट कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन का हाई डोज हो सकता है, आज इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी हाई डोज हो सकता है। इनकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या होती है, ये करते क्या है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, दे inhibit the secretion of FSH, follicle stimulating hormone, and LH, FSH and LH, that is luteinizing hormone secretion, if affect normal ovulation, यानी यहाँ पे ओवुलेशन नॉर्मल नहीं हो पाता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, हाउ वी कैन स्टार्ट, सो पिल्स कैन बी गिवन आफ्टर, और वी कैन राइट पिल्स कैन बी गिवन फ्रॉम 5th day of menstrual cycle, 5th day of menstrual cycle continuously for 21 days। यानी जब कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग हुई, 5वें दिन से हम इस पिल को देना स्टार्ट करेंगे। इसको रेगुलरली डेली एक खाना होता है, कहाँ तक, 21 टैबलेट्स होती हैं, जब तक वो 21 टैबलेट्स ख़त्म नहीं हो जाती हैं उसको कंटिन्यूसली लेना है। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं, मान के चलते हैं नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1 तारीख को स्टार्ट हुई तो हम 5वें दिन से यानी 5 तारीख से लेके इन पिल को रेगुलरली एक खाना स्टार्ट करेंगे। 21 टैबलेट होते हैं, जब सारे वो 21 टैबलेट ख़त्म हो जाएंगे फिर उसको रोक दिया जाएगा, और जब फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो वहाँ से फिर 5वें दिन से इस टैबलेट को लेना स्टार्ट कर दिया जाता है।
Okay, so I hope that now you will able to understand. And next, that is very important here, this is asked in your competitive examination, that Saheli, a non-steroidal oral pill, Saheli, a non-steroidal oral pill टेकन वीकली, इसको कब लेना होता है, वीकली लेना होता है, एंड विदाउट साइड इफेक्ट, इज डेवलप्ड बाय CDRI, that is Central Drug Research Institute. What is this? Central Drugs Research Institute. कहाँ पे है ये? लखनऊ. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. यानी एक नॉन स्टेरॉयडल पिल जिसका नाम क्या है, सहेली, डेवलप किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि लखनऊ में है. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव जो कि नॉर्मल है, जैसे है माला डी एज वेल एज माला एन. लेकिन ये क्या है, स्टेरॉयडल है. ये क्या है बेटा, स्टेरॉयडल एंड डेली यूज पिल्स. ये क्या है, डेली यूज पिल्स हैं, स्टेरॉयडल है, हेंस इनके क्या होते हैं, सम साइड इफेक्ट्स. तो सबसे नॉर्मल कौन सी है, सहेली है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर प्लांट, दैट इज ऑल्सो नोन एज सब क्यूटेनियस implants. These are also known as subcutaneous implants. Actually, what is this? This is most effective. This is most effective reversible. This is most effective reversible low maintenance and provide protection for 5 years. यानी नॉर प्लांट्स या सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये मोस्ट इफेक्टिव हैं, कभी भी रिवर्स किए जा सकते हैं और उनका लो मेंटेनेंस कॉस्ट है. व्हाट इज द टेक्निक, 6 मैच स्टिक्स साइज कैप्सूल्स इन स्पेशल fan like shape is inserted into the females under skin. यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 मैच स्टिक साइज के कैप्सूल जिनको एक स्पेशल फैन लाइक शेप में ढाल के या बना के स्किन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. ये करते क्या है, रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टू अवॉइड प्रेगनेंसी. यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये क्या करते हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर प्लांट्स. ओके देन स्टूडेंट्स, नाउ अप टिल वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉर प्लांट्स. इन नॉर प्लांट्स वर्किंग मैकेनिज्म, वी कैन राइट हियर वर्किंग मैकेनिज्म is similar to oral contraceptive. Means inhibition of
इनहिबिशन ऑफ मीन्स इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। यानी अगर नॉर प्लांट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे काम करते हैं, तो आप बताएंगे कि नॉर प्लांट जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव काम करते थे, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते थे, वैसे यहाँ पे नॉर प्लांट्स भी करते हैं। सो नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इज डिपो और डिवो प्रोवेरा। डिवो प्रोवेरा, दिस इज व्हाट कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन। यानी अभी तक हमने देखा जो भी हमारे कंट्रासेप्टिव थे वो टैबलेट के फॉर्म में थे, बट हियर वी आर कंसिडरिंग विथ इंजेक्शन। सो बेटा डिपो और डिवो प्रोवेरा दैट इज ए कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन। इट कंटेन्स medroxyprogesterone acetate, medroxyprogesterone acetate, or we can write progesterone hormone that provide protection against pregnancy for 3 months। यानी 3 महीने के लिए बेटा कौन प्रोवाइड करता है? डिपो और डिवो प्रोवेरा इंजेक्शन जो होता है 3 महीने का बेटा क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन देता है किससे? अनवांटेड प्रेगनेंसीज से। नाउअडेज इन द मार्केट में बेटा ये कई नाम से प्रचलित है। डिम्पा, ठीक है, डिम्पा के नाम से भी फेमस है। बी गैप में बेटा टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आते हैं, ठीक है, टैबलेट इंजेक्शन। और भी अदर कंपनियां हैं, यहाँ पे बेटा हम कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं नहीं, तो हम आपको कुछ कंपनियों के नाम बताया जिसमें डिम्पा है या बी गैप है। दीज आर ऑल्सो इन द मार्केट। ओके देन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट दैट इज emergency pill, or this is also known as emergency contraceptive. So now we will discuss about these. So these are also known as morning after pill or डे आफ्टर पिल। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग आफ्टर पिल और डे आफ्टर पिल। एंड दीज आर गिवन टू द फीमेल, यानी यह भी फीमेल के लिए है, गिवन टू द फीमेल्स इन द केस ऑफ coitus without precaution, यानी ये फीमेल्स को दिया जाता है अगर क्वाइटस हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और बिना प्रिकॉशन के हुआ और उस दौरान ये चांस है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस दौरान ये दिया जा सकता है। बट इट शुड बी गिवन बिफोर 72 आवर्स, 72 घंटे से पहले दिया जा सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, यानी बिना डॉक्टर के सुपरविजन के। दिस इज वेरी डेंजरस टू यूज दीज काइंड ऑफ पिल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट emergency pill. Now in the last we will discuss about the surgical method of contraception बेटा हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। सो इन सर्जिकल मेथड दिस इज व्हाट permanent method of termination of pregnancy and advised to
and advise to those parents who do not want any more child। यानी ये जो सर्जिकल मेथड है ऐसे पेरेंट को बताया जाता है, आप इसका सहारा ले सकते हैं जिनको अब बच्चों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिवर्सिबल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। इसको आप क्या कह सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, यानी स्टेरिलाइज कर देना। कैसे? इन मेल, यानी मेल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है बेटा, मेल स्टेरिलाइजेशन, आप जेड और एस दोनों यूज कर सकते हैं। मेल स्टेरिलाइजेशन को हम कहते हैं क्या, वैसेक्टोमी। ओके, और जो फीमेल्स का स्टेरिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो व्हाट इज वैसेक्टोमी एंड व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? सो इन वैसेक्टोमी vas difference is cut or tied up। वास डिफरेंस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं या टाई अप कर देते हैं बाय माइनर इंसीजर, यानी माइनर इंसीजर से क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है या उनको टाइड अप कर दिया जाता है। माइनर इंसीजर इन स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम में माइनर इंसीजन किया जाता है। मान के चलते हैं ये वास डिफरेंस थी, इसका कुछ पार्ट था, इसको हटा दिया गया या इसको बांध दिया गया। वाई ओनली वास डिफरेंस? बिकॉज आज यू नो दैट वास डिफरेंस कैरी द स्पर्म। अब जो स्पर्म को कैरी कर रहा है उसी को हमने हटा दिया या उसको ब्लॉक कर दिया तो आगे स्पर्म को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है, फिर स्पर्म आगे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है। वही हाल क्या फीमेल्स में होता है? इन फीमेल्स क्या होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब इज कट or tied up by minor incisor in abdomen or through vagina। यानी फीमेल्स में क्या है, मेल्स में तो स्क्रोटम में क्या माइनर इंसीजर किया गया, जो फीमेल्स होती है थ्रू वजाइना, और वी कैन से दैट through abdomen we can just tied up or we can just cut the fallopian tube। क्यों fallopian tube? क्योंकि fallopian tube is the site of fertilization। तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देंगे, तो वहाँ पे फिर एग की एंट्री fallopian tube में नहीं हो पाती, इधर से स्पर्म नहीं पहुँच पाएगा, उधर से एग नहीं पहुँच पाएगा, तो एक दूसरे की मीटिंग जो थी वो कैंसिल हो गई, और मीटिंग कैंसिल हो गई तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो होते हैं बेटा, एक that is vasectomy in which vas difference is cut or bounded, tubectomy in which fallopian tube is cut or bounded। Okay then students, so in the last let's discuss with advantage। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेज हैं। एडवांटेज में क्या है, वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ही इफेक्टिव है। नो हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, और नो वीकनेस, कोई कमजोरी भी नहीं आती। तो ये सभी क्या हैं, एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में क्या है बेटा, डिसएडवांटेज में नो प्रोटेक्शन फ्रॉम STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है, इस वजह से ये परमानेंट मेथड हो जाता है। एक बहुत ही कॉमन जुगाड़ टेक्नोलॉजी बेटा जो काम करेगी वो क्या है,
एक्सेप्ट बैरियर मेथड, जितने भी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हैं उसमें से कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन नहीं देता। तो एक डिसएडवांटेज आप ऐसे ही जान गए क्या, एक्सेप्ट बैरियर मेथड, जितने भी बाकी 7 मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ओके, और जितने भी हार्मोनल या हार्मोन बेस्ड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है, ऑल दो जस्ट इररेगुलर्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 2 डिसएडवांटेज आपको ऐसे ही पता चल गया, बैरियर मेथड को छोड़ के बाकी जितने हैं एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कोई प्रोटेक्शन नहीं, और हार्मोनल जितने हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इररेगुलर कर देते हैं। So this was all about your method of contraception. If you have any doubt, any queries, you have to leave in your comment box. Just like the video, share the video, and just subscribe to the channel also. So that is all about for today. Thank you for watching the video. Have a nice day. Keep smiling. Jai Hind.